Hello everyone. Again we are here with class 12 English, Poetry Geography, FWF, Chapter 7, The Necklace, written by Guy De Maupassant. I have written here some of the difficult words. When they will come in the chapter, I will convince you. In my last class, I convinced you that Mr. Loisel brought an invitation card for his wife. He said that it was very select. Only important person has been invited. So you must also go with me. But his wife was not ready because she was complaining that she didn't have any beautiful dress and jewelry. And they belonged to very poor families. And his wife, Matilda Loisel, her name is Matilda Loisel, she thought about the good things, the luxuries. And her husband worked in an office, in a board exam office. His income was not so big. So in my last class I convinced you that she said that how would I be happy? What would I wear? What would I wear? आगे बढ़ गया. He had not thought of that. He stammered. Why the dress you wear when we go to the theatre? It seems very pretty to me. He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What's the matter? What's the matter?" उसने तो सोचा ही नहीं इस बारे में कि उसकी वाइफ क्या पहनेगी. बोलो कि जो ड्रेस तुम पहनती हो, वो ड्रेस जो हम लोग थिएटर जाने के टाइम जो तुम पहनती हो, जो ड्रेस, वो ड्रेस तो मुझे काफी अच्छी लगती है. ये बोल करके वो थोड़ा चुप हो गया, थोड़ा सा सोच रहा था कि क्या बोलेगी मेरी वाइफ. लेकिन अब वो देखा अपनी वाइफ को. हिज वाइफ वाज क्राइंग, रो रही थी. स्टैमरिंग करते हैं. स्टैमर हकलाना होता है, तो स्पीक बाय रिपीटिंग द वर्ड्स. रिपीट करते हैं वर्ड्स को बोलना, वो क्या होता है? हकलाना, स्टैमर. बोलो, व्हाट इज द मैटर? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I am. अपने चीक्स को जो मॉइस्ट थे उन्हें पोंछते हुए बोला कि कुछ नहीं हुआ, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं इस अफेयर में, इस पार्टी में जा नहीं सकती. ये कार्ड तुम अपने किसी कॉलीग की वाइफ को दे दो, जो तुम्हारे साथ काम करता है, उसकी वाइफ को दे दो, जो जिसके पास मेरे से ज्यादा बेटर ड्रेस हो, मेरे से अच्छी आउटफिट पहनती हो, ड्रेस पहनती हो. He was grieved but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions. Something very simple." उसे काफी बुरा लगा. बोला कि अच्छा चलो देखते हैं कि एक सूटेबल कॉस्ट्यूम में ड्रेस कितने में आ जाएगी. इस तरह की ड्रेस लेनी है जो सिंपल हो और दूसरे जगह, दूसरे ओकेजन्स में भी हम यूज कर सकते हैं. कोई ड्रेस कोई इस तरह से लेडी खरीदती है कि किसी स्पेशल ओकेजन में ही वो ड्रेस पहने जा सकती है. इसलिए मिस्टर लॉयजल ने बोला ऐसी ड्रेस लेनी है ताकि दूसरे ओकेजन्स में भी वो पहने जा सके, क्योंकि वो काफी ज्यादा रिच नहीं थे. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally she said, in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." वो कुछ देर सोची मटिल्डा, और कुछ ऐसा अमाउंट बताने के बारे में सोच रही थी. सोची ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा अमाउंट को बता दूंगी. तो जो इकोनॉमिकल क्लर्क है, पैसे कम कमाता है, खर्च कम करता है, कंजूस है ये, तो ये तुरंत ना कर दे. अगर हम अपने किसी फादर से, मदर से कुछ मांगते हैं तो मोटरसाइकिल चाहिए, स्कूटी चाहिए, ये चाहिए,
आप बोलेंगे एक बड़ी कार चाहिए, देंगे? तुरंत मना हो जाएगा, तुरंत मना कर देंगे। वो नहीं हो सकता है, उससे कि सोच समझ के बोलना पड़ेगा। तो हेजिटेट करते हुए बोला कि एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन मुझे लग रहा है कि 400 फ्रैंक्स में ये ड्रेस आ जानी चाहिए, ड्रेस आ जानी चाहिए। फ्रैंक इट्स अ करेंसी, करेंसी होती है जो करीब 72 रुपीज 1 फ्रैंक होता है, 72 रुपीज 1 फ्रैंक। तो करीब 400 फ्रैंक्स लगेंगे। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." और थोड़ा सोच में पड़ गया कि क्या बोलेगा वो, क्योंकि करीब इतने ही पैसे 400 फ्रैंक्स ही उसने सेव करके रखा था नेक्स्ट समर के लिए। नेक्स्ट समर सीजन में क्या करता वो अपने फ्रेंड्स के साथ संडे के दिन, नेक्स्ट समर जो आता है तो संडे के दिन, किसी एक संडे को या फिर कुछ संडेज को वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है लार्क्स को शूट करने के लिए। मतलब लार्क इट्स काइंड ऑफ बर्ड। तो उसे वो गन खरीदनी थी, इसके लिए पैसे उसने सेव कर रखे। लेकिन बोले चलो कोई बात नहीं, तो सोचा कि मैं ये पैसे सेक्रीफाइस कर दूंगा, अपनी वाइफ को दे दूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें गिव यू 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई टू हैव सम प्रिटी ड्रेस, गुड ड्रेस, अच्छी ड्रेस लेने की कोशिश करना जो डिसेंट लगे, खराब ड्रेस नहीं होनी चाहिए। The day of the ball approached and Madam Loyal seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What's the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." The ball में डांस, वो बॉल का पार्टी, डांस या पार्टी, वो टाइम लगभग अब आने वाला था, अभी आने वाला था। लेकिन मैडम लॉयल फिर से डिस्टर्ब रहने लगी, परेशान रहने लगी। ड्रेस रेडी हो गई। उसके हस्बैंड ने एक इवनिंग को पूछा कि व्हाट द मैटर, तुम अजीब तरह से बिहेव कर रही हो 2-3 डेज से। एंड शी रिस्पोंडेड, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू एड ऑन माई सेल्फ विद, आई शैल हैव सच अ पावर स्ट्राइकिंग लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। अब नखरा बढ़ गया उसका, ये ड्रेस मिल गई तो और भी कुछ चाहिए उसे। उसने बोला कि मैं वैक्स्ड हूँ, परेशान हूँ इस वजह से कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए। खुद को मैं किस चीज से एड ऑन करूं, एड ऑन टू डेकोरेट, सजाना। मैं वहां जाकर के कितनी पुअर दिखूंगी, गरीब दिखूंगी, वहां पे और दिखूंगी। मैं सोच रही हूँ उस पार्टी में नहीं जाऊँ। Replied, you can wear some natural flowers in the season, they look very thick. हस्बैंड ने बोला कि तुम कुछ फ्लावर्स लगा सकती हो, ज्वेलरी में फ्लावर्स लगा सकती हो। ये जो सीजन जो है ना, इस टाइम जैसे अगर तुमने फ्लावर्स लगा लिए ना, काफी तुम ब्यूटीफुल लगोगे और वो काफी सुंदर दिखेंगे फ्लावर्स। नो चिल्ड्रन, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ स्टैम्प एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। वो कन्विंस नहीं हुई इससे। वो बोली कि नहीं, अगर मैंने फ्लावर्स डेकोरेट किया ना, अपनी बॉडी को, अपने ड्रेस को फ्लावर्स डेकोरेट किया, तो इससे बड़ा तो ह्यूमिलिएटिंग नहीं हो सकता, इंसल्टिंग नहीं हो सकता। वहां पर रिच वुमेन रहेंगी, अमीर औरतें, और वहां पे मैं जाकर के ये फ्लावर्स लगा के जाऊंगा। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Madam Fostier and ask her to lend you your jewels." उसके हस्बैंड को एक बात माइंड में आई, जोर से चीख करके बोले, चिल्लाते हैं, "We are very much stupid. तुम अपने फ्रेंड के पास जाओ, मैडम फर्स्ट ईयर उसकी फ्रेंड थी जो काफी रिच थी, घर में लग्जरीज की सारी चीजें थी।
बोले वहां जाकर के तुम कोई ज्वेलरी लैंड कर सकती हो, उधार ला सकती हो। मतलब उससे कहना कि तुम्हें लैंड कर दे, तुम उधार दे दे, तुम बाद में लौटा देना ज्वेलरी। She uttered a cry of joy. It's true, she said. I had not thought of that. बिल्कुल खुश हो गई, बिल्कुल सही हुआ तुमने, मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Madam first day went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose my dear." अपने फ्रेंड के पास गई वो नेक्स्ट डे और पूरी स्टोरी बता दी कि दुख की बात क्या थी, परेशानी की बात क्या थी। मैडम फर्स्ट ईयर अपने अलमीरा के पास गई, अलमीरा की ओर, और वहां से एक बड़ा सा केस निकाली, बड़ा सा बॉक्स निकाली, लेकर के आई, उसके सामने खोल दिया बॉक्स को और बोला, "चूज माय डियर, जो तुम्हें ज्वेलरी लेनी हो ले लो।" बहुत सारी ज्वेलरीज थी वहाँ। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" सबसे पहले मटिल्डा ने ब्रेसलेट देखा, उसके बाद मोतियों की माला देखी, उसके बाद एक क्रॉस था, क्रॉस होता है जो क्रिश्चियन लोग पहनते हैं, वो भी एक ज्वेलरी होती है लेडीज के लिए बहुत कंट्रीज में। और वहाँ पे जो वर्कमैनशिप थी, डिजाइन जो था वो एडमायरेबल था, यानी बहुत अच्छी तरह से डिजाइन हर ज्वेलरी पे किया गया था। हर ज्वेलरी को वो मिरर के सामने लगा कर देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी ज्वेलरी वो रखेगी। फिर बोला कि और नहीं है कुछ, अपने फ्रेंड से पूछा कि और कोई ज्वेलरी नहीं? Why yes, look for yourself. I do not know what will please you. कहा कि बिल्कुल है, देख लो और ज्वेलरी को दिखा दो। बोलो मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन तुम्हें प्लीज करेगा, कौन तुम्हें खुश करेगा, कौन सी ज्वेलरी। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. अचानक एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में, बॉक्स सैटिन मतलब जो सॉफ्ट टाइप होता है, मखमल, वेलवेट, इस तरह का क्लोथ था बॉक्स के कवर पे। जब उसे खोला तो वहां पे एक नेकलेस मिला डायमंड्स का, और हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, जैसे निकाला हाथ कांप रहे थे मटिल्डा। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज एक्सटैटिक। जो ड्रेस वो पहनी हुई थी उसके ऊपर गले में लगा करके देखा कि वो ज्वेलरी सूट कर रही है कि नहीं। वो सोची मैं एक्सटैटिक लग रही हूँ, ब्यूटीफुल। Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this? Only this?" Why, yes, certainly. Hesitate करते हुए सोचा कि पता नहीं ये देगी कि नहीं फ्रेंड। Hesitate करते हुए बोला कि क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? बोला of course, yes, ले लो। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. वो अपने फ्रेंड के गले लग गई पैशन से, मीन्स काफी हैप्पी होकर के, और फिर अपना ट्रेजर, अपना खजाना, मतलब वो ज्वेलरी जो है नेकलेस, वो लेकर के चली गई। The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. बॉल का डे, डांस और पार्टी का डे आ चुका था। मैडम लॉयजल काफी सक्सेसफुल थी उस दिन की, जो सोच रही थी कि मैं काफी ज्यादा अच्छी दिखूं, वो काफी ब्यूटीफुल दिख रही थी। आज ब्यूटीफुल मीन्स सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी, स्माइल कर रही थी वो, काफी खुश थी वो। सभी मैन जो थे, जेंट्स, वो सभी उसे नोटिस कर रहे थे, जब शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सभी को उसका नाम पूछ रहे थे, और सब कोई चाहते थे, जितने जेंट्स थे, कि मैं जैसे उसके सामने जाऊं, मुझे जैसे देखे, मुझसे जैसे बात करे। Every man was thinking like that. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. Enthusiasm के साथ, काफी खुशी के साथ वो डांस की।
प्लेजेंस का नशा था, मतलब जो खुशी जो मिली थी उसका नशा था उसे, इस नशे में डांस किया। एडमिरेशन के अलावा, तारीफ के अलावा कुछ नहीं सोच रही थी। हार्ट में, दिल में एडमिरेशन जैसे कोई बस गई थी, एकदम बैठ गई थी वहां पे एडमिरेशन, सभी की तारीफ, सभी ने जो तारीफ की थी, और वो तारीफ दिल से उतर नहीं रही थी, माइंड से वो बात निकल नहीं रही थी। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. वो करीब 4 o'clock मॉर्निंग में घर गई, 4 o'clock मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग होता है। लेकिन जाने से पहले क्या हुआ, उसका जो हस्बैंड था मिस्टर लॉयजल, वो करीब सैलून, कहीं पर रेस्ट करने की जगह जो होती है सैलून बोलते हैं, तो वहां पे मिडनाइट से वो रेस्ट कर रहा था, आधा सोया हुआ था कि पता नहीं इसका डांस कब खत्म होगा, मैं इसको लेके जाऊं। और भी 3 जेंटलमैन वहां पे थे, उनकी भी वाइफ्स वहां पे डांस कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। यानी 3 जेंट्स वहां पे और भी थे, उनकी वाइफ्स भी वहां पे डांस कर रही थी, और मटिल्डा भी डांस कर रही थी, यानी 4 जेंटलमैन हो गए। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried home, proudly clasped with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. जब डांस खत्म हो गया तो वो एक रैप, कुछ शॉल वगैरह इस तरह का कोई कपड़ा उसके बॉडी पे कवर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो ड्रेस वो पहनी थी, वो ड्रेस उनके गरीबी को क्लैश कर रही थी, टकरा रही थी। इन गरीब लोगों को इस तरह की ड्रेस पहनने का कोई हक नहीं। मे बी दैट ड्रेस वाज रिवीलिंग, वो रिवीलिंग ड्रेस रहा था। वो सोच रही थी कि मटिल्डा लॉयजल वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी कि जैसे दूसरी वुमेन जो है वो मुझे देख नहीं ले, क्योंकि इसने मुझे शॉल उड़ा दिया है, इस ड्रेस में क्या बुराई है, ताकि रिच फर्स में, कीमती कपड़ों में जो लेडीज है वो जैसे मुझे देख नहीं लिए शॉल को ओढ़े हुए। लॉयजल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। मिस्टर लॉयजल ने बोला, जरा रुक जाओ कुछ देर, मैं एक कैब बुला के लाता हूँ, कोई गाड़ी, चाहे ऑटो हो, छोटी मोटी गाड़ी हो, टांगा हो। But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. लेकिन वो रुकी नहीं वहाँ। लॉयजल ने बोला कि रुक जाओ यहाँ पे, मैं गाड़ी बुला के आता हूँ, गाड़ी वाले। क्योंकि वो जल्दी से चली गई, क्योंकि सोची थी अगर मैं यहाँ रुक गई और वो जो मेरे साथ जो डांस कर रही थी लेडीज, वो उन्होंने मुझे अगर देख लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी मेरी। तो वो अपने हस्बैंड के साथ गई। रास्ते में इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट ये लोग कोचमैन को, गाड़ी वालों को जो दूर दिखाई दे रहे थे उनको बुला रहे थे दोनों। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड द रिवर, होपलेस एंड शिवरिंग। रिवर के अलोंग चल रहे थे, पैरेलल में। कांप भी रहे थे दोनों, ठंड से, ठंड लग रही थी। Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. Finally, एक गाड़ी वाला मिला, इस तरह की गाड़ी जो पेरिस में नाइटफॉल, रात के बाद इस तरह की गाड़ी मिलती है। ऐसी गाड़ी वहां पर तब मिलती, दिखाई दी, जिस तरह की गाड़ी पेरिस में दिखाई देती है रात को। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It was all overflow, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. ये गाड़ी वाला जो था, ये गाड़ी जो थी, ये उन लोगों को उनके घर के, मतलब अपार्टमेंट जो था वहां तक लेके गई गाड़ी। अब मटिल्डा के लिए अब लगभग पूरी पार्टी खत्म हो गई थी। हस्बैंड कह रहा था मिस्टर लॉयजल कि मुझे नेक्स्ट डे ऑफिस भी जाना है 4 o'clock। नेक्स्ट टाइम मतलब 4 o'clock 5 o'clock टाइम हो चुका है,
10 o'clock तक पहुंचना भी है, उसको थोड़ा सा मैं रेस्ट करने का मुझे टाइम मिल जाए। She removed the wraps from her shoulders before the glass. ग्लास के पास गई वो देखने के लिए। लोग कहीं बाहर वगैरह जाते हैं घूमने के लिए अच्छी ड्रेस पहन करके, फिर घर में आकर फिर देखते हैं ड्रेस मैं कैसा लग रहा था, कैसी लग रही थी। तो वो भी वैसे ही शॉल को हटा करके, रैप को हटा करके अपने को देख रही थी। For final view of herself in her glory, final view देखने के लिए मैं कैसी लग रही थी पार्टी में। Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. बहुत जोर से चिल्लाई। क्यों? क्योंकि सामने मिरर में उसका नेकलेस गले में नहीं था, गायब हो चुका था। पता नहीं कहाँ चोरी हो गया वो, ये पता नहीं चला। So page number 42 almost we completed. Remaining we will complete in our next class. You get a question in writing? Thank you very much.